Hello student, you are welcome in online teaching. ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है. Today we learn lesson number 10, disaster management, subject general science, standard 7, medium semi-English Hindi. Let us see the lesson number 10, disaster management. See the newspapers cutting. There are some newspaper cutting. Observe and discuss. What are this newspaper showing? Here is written ट्रक अपघातात तिघांचा मृत्यू. महाड ब्रिज कोलॅप्स. रशियाचे विमान कोसळ. शस्त्राच्या धोकाने मेल मधील प्रवाशांना लुटला. हियर वार्धा वादळाचे चेन्नईचे थैमान. Here is some disaster. Some disaster. In this picture you see some disaster. कुछ आपदाएं आपको दिखाई दे रही हैं. ये न्यूज़पेपर ऐसा संबोधित कर रहे हैं. कुछ आपदाएं आपको यहाँ से मालूम पड़ रही हैं. कुछ घटनाएं जो कि घटित हुई हैं इस न्यूज़पेपर में दिखाया गया है. Can you tell? There are some questions. Try to answer. Can you tell? First one, is it possible to prevent the loss of life caused by lightning? Lightning से क्या हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं? आंसर, the loss of life cannot be prevented if it is caused by lightning, but if there is thunderstorm with lightning, one must be careful. He or she should not leave house, take shelter with due precautions. इस तरह से कुछ सावधानी बरत करके हम बच सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द बर्न्स ऑन ए फार्म फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे इन द रेनी सीजन. जो बांध बनाए जाते हैं, मेड़ बनाई जाती है खेत के चारों तरफ, उसे क्या बचाया जा सकता है बारिश के दिनों में? आंसर, the burns are maintained and repaired before the onset of rains. If waterlogging occurs, it may break the burns. Therefore, a suitable opening is made in the burns, which drains off the excess water without breaking the burns. यानी उस बर्न्स को मेड को रिपेयर कर दिया जाए और उसमें जो है पानी निकलने के लिए ड्रेन्स बनाया जाए, नाली बनाया जाए, तो एक्सेस वाटर नहीं होगा और उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी एक्सपीरियंस वाटर स्केर्सिटी? वाटर स्केर्सिटी क्यों होता है? पानी की कमी क्यों होती है? Answer, if there is no adequate rainfall during a particular year, there is deficit of water in the water bodies. The quantity of stored water in the dams or lakes also reduce due to overconsumption, or if not used in unplanned way, this result into water scarcity. यानी बारिश कम होगी, जो वाटर होता है हमें रेनफॉल से मिलता है, रेनफॉल बराबर नहीं होगा किसी ईयर में, तो पानी की कमी हो जाएगी. उसको ढंग से स्टोर जो कहाँ किया जाता है उसको भी अगर हम बराबर प्लान से नहीं यूज करेंगे, ज़्यादा यूज कर लेंगे तो भी कमी हो जाएगी. तो इस तरह से पानी की कमी देखने को मिलती है. We have studied two types of disaster, namely man-made and natural disaster, into which
categories do we disasters shown in the news items above fall। अभी इसके पहले हम लोगों ने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें कुछ जो है आपको डिजास्टर दिखाई पड़े। इसमें जो है दो तरह के डिजास्टर, कुछ तो जो है नेचुरल और कुछ मैन मेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देयर आर सम डिजास्टर आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। ट्रक अपघात से मृत्यु, दिस डिजास्टर इज रिलेटेड टू मैन मेड। महाड़ ब्रिज कोलैप्स, दिस इज रिलेटेड टू मैन मेड। एंड वादलाचे चेन्नई स्थैमान, this is related to natural। There are some natural disaster and some man-made disaster। We have studied two types of disaster, namely man-made and natural disaster। Into which categories do we disasters shown in the news items above fall? There are two types of disasters, some man-made and some natural। We can prevent certain disaster while it is necessary to take precautions in case of some others disaster। Natural and man-made disaster are related to each other। जो है दोनों डिजास्टर नेचुरल और मैन-मेड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हम इस कुछ सावधानी बरत करके इनसे बच भी सकते हैं। Here are some pictures shown the जो है famine and water scarcity। Some here are showing the water scarcity, it is called famine। Natural disasters such as famine, lightning strikes, cloud burst, storm, etc. occurs due to changes in the weather। There is the possibility of damage to property in such natural calamities। Who is to be held responsible for that? What can we do to deal with these losses? तो इस तरह से कुछ नेचुरल डिजास्टर हैं एज फेमिन, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, क्लाउड बर्स्ट, स्टार। ये क्यों होते हैं? वेदर के चेंज के कारण होते हैं और इनके कारण बहुत सारा डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन इनकी भरपाई कर सकता है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। Famine. What is famine? The condition that arises due to long-term and severe scarcity of food, grains, and water is called famine। Famines can be very severe, although the main causes of famine is natural phenomena। Yet a famine condition is created by some human activities besides some natural events। फेमिन जो अकाल है यह तो नेचुरल होता है, लेकिन कभी कभी मैन के द्वारा ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज के कारण भी ऐसा होता है। काजेज ऑफ फेमिन, फेमिन अकाल के कारण क्या है? ड्राउट्स, heavy rains and flood, crop getting washed away or damaged in the flood, environmental changes such as temperature changes, storms, cold waves, or fog damage crops by animals like mice and rats, attack of pests, locusts, or diseases of crops, and natural calamities like earthquake, etc. are some of the causes of famine। Of these, droughts is the main cause। Man-made causes of famine includes war, internal unrest, absence of transport routes, uncontrolled population growth, etc। इस तरह से अकाल फेमिन यानी अकाल के कुछ यहाँ पे कारण बताए गए हैं, काजेज बताए गए हैं। साफ, ड्राउट्स यानी सूखा, हैवी रेन्स बहुत तेज बारिश हो जाना, फ्लड्स इस तरह से बाढ़ आ जाना, तो इनके कारण जो है फसल नष्ट हो जाती है और
इन्वायरमेंट में चेंजेज हो जाता है तो भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो बर्फ पे पड़ जाते हैं, आंधी आ जाती है, इस तरह से भी बहुत सारा डैमेज होता है। कभी कभी एनिमल्स के द्वारा भी, के अटैक के द्वारा भी नुकसान होता है फसल का, कभी कभी जो है अर्थक्वेक आ जाता है। ये बहुत सारे कारण हैं जो कि फेमिन के अकाल के कारण। कुछ मैन मेड भी कारण है, जिससे तो मेन कारण जो सूखा है, ड्राट्स है, लेकिन मैन मेड कारण भी इसमें हो सकते हैं फेमिन के। जैसे कभी कभी वार होता है, युद्ध छिड़ जाए, इंटरनल अनरेस्ट, देश के अंदर कोई जो है परेशानी आ जाए, ट्रांसपोर्ट की समस्या हो, इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ जाने पर भी अकाल की स्थिति आ सकती है। देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ caused by severe famines in various parts of the world. Asia has turned out to be the most famine affected continent of the world. A majority of the famines occurred in droughts prone and floods affected regions. Among the most dreadful famines that have occurred in the world are the famines that affected India and China. तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो फेमिन का जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट है वो एशिया कंटिनेंट है, और एशिया में जो है चाइना और इंडिया और चाइना में इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमिन, क्या इस अकाल के लिए हम उत्तरदायी हैं? वी आर रिस्पॉन्सिबल, तो इसके हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, वाटर शॉर्टेज इज इंक्रीजिंग एज द बैलेंस बिटवीन रेनफॉल एंड पॉपुलेशन इज डिस्टर्ब। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रेनफॉल और पॉपुलेशन का बैलेंस बिगड़ता है। नेक्स्ट 2, दो देयर हैज बीन ए वेरी हाई राइज इन द production of food grains as a result of the green revolution, the balance of the environment has been lost due to use of chemical fertilizer, pesticides and weedicides. तो इस तरह से ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में जो है हम बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो है कुछ पेस्ट कंट्रोल की दवाएं इस तरह से यूज करते हैं, इसके कारण भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है और जो है फेमिन आता है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग करना, निकाल लेना जमीन के अंदर से, इरोशन ऑफ लैंड, मिस यूज ऑफ वाटर, इस तरह से कुछ चीज़ें हम करते हैं, मैन के द्वारा की जाती है, ह्यूमन के द्वारा, इसलिए जो है फेमिन आता है। तो वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमिन। इन द पास्ट कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, ऐसे आ चुके हैं फेमिन, तो इसकी भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन द पास्ट फेमिन आर नॉट ए न्यू phenomenon. The problems of drinking water, food and fodder of the animals date back to historic times. जो है पहले भी ऐसा हो चुका है जबकि पानी और खाने की कमी हो चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति शाहू महाराज implemented many schemes to overcome the famines of their times. इस तरह से छत्रपति शिवाजी और शाहू महाराज के टाइम में जो है कुछ उन्होंने स्कीम चलाया था इससे फेमिन से बचने के लिए। देयर वाटर सप्लाई एंड वाटर स्टोरेज स्कीम आर आइडियल इवन इन टूडेज सर्कमस्टेंस। तो उनके द्वारा जो स्कीम बनाई गई थी वाटर यूज करने का, वाटर सप्लाई का और वाटर स्टोर करने का, वह एक आइडियल है और आज भी स्कीम का पालन किया जा रहा है। तो यू टू कैन मेक स्कीम लाइक दिस टू फेस फ्यूचर क्राइसिस एंड डिजास्टर which will be of use not only in your own life in the future but also for society at large। इस तरह से हम स्कीम बना करके अपनी सुरक्षा और समाज की भी सुरक्षा, सोसाइटी की भी सुरक्षा कर सकते हैं।
Malik Ambar implemented a canal scheme for drinking water in Aurangabad. It exists even today. Collect more information about it. इस तरह से मलिक अंबर ने जो है कैनाल स्कीम बनाया था नहर निकालने का ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वह जो है आज भी औरंगाबाद में काम कर रही है, आज भी उसका पालन किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है कुछ और इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं जो कि इस तरह की स्कीम जहां पर बनाई गई है। What can we do to ease the severity of a famine? फेमिन कम आए से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, प्लान यूजेस ऑफ वाटर एंड रीयूज ऑफ वाटर। प्लान के साथ जो है वाटर का यूज करें और रीयूज करें वाटर। नेक्स्ट, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पर एक प्लान बना करके वाटर जो है वो कंजर्व किया जाए, इकट्ठा किया जाए, उसको जमा किया जाए और जमीन के अंदर डाला जाए। नेक्स्ट 3, लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्री एंड प्रिवेंटेशन ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो प्लांटेशन किया जाए, वृक्ष लगाया जाए, उसको जो है बचाया जाए, सेव किया जाए। नेक्स्ट 4, मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस इन प्लान्स टेकिंग इनटू अकाउंट द वेदर फॉरकास्ट। अगर जो है वेदर फॉरकास्ट को देख करते हुए जो हमें सूचनाएं मिलती हैं हमारे मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको देखते हुए हमें अपने प्लान में चेंजेस कर लेना चाहिए, उस तरह से प्लान हमें बनाना चाहिए। तो इस तरह से फेमिन से हम काफी हद तक बच सकते हैं। See there some picture. See there this picture is showing the some student planting a plant. Large scale tree plantation, no famine, no land erosion. This is a slogan. Compose a variety of such slogan and use them during environment awareness rallies. तरह से इन्वायरमेंट अवेयरनेस के संदर्भ में रैली बना निकाल करके इस तरह से कुछ स्लोगन बना करके लोगों को जागरूक करना चाहिए, जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरह से फेमिन से बचाव हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट, what is cloud burst? Sometimes the water coming down from rain clouds does not reach the land in the form of rain. Instead, due to very high temperature near the land, it vaporizes and goes back into the shape clouds. As a result, the amount of vapor in those clouds becomes very high. Due to rapid condensation, it rains suddenly over a specific and small region at a rate of 100 millimeter per hour or more. This is known as a cloud burst. तो इस तरह से अचानक जो बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, 100 मिलीलीटर पर आवर से भी अधिक तेज बारिश अचानक हो जाती है, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना कहते हैं। Do you know a cloud burst occurred at Leh, Ladakh on 6th August 2010? लद्दाख में इस तरह की घटना 2010 6 अगस्त 2010 को हुई थी। The cloud burst that occurred in Mumbai on 26th around 26th July 2005 was extraordinary and unforgettable. On that day, it rained about 950 millimeter, that is 37 inches in 8 to 10 hours, and the entire city of Mumbai was waterlogged and flooded. इस तरह से मुंबई में भी जो है 26 जुलाई 2005 को इस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 950 मिलीमीटर की जो है रेनफॉल हुआ था, वो भी जो है यानी 37 इंच बारिश 8 to 10 आवर्स में 8 से 10 घंटे के अंदर हुई थी।
पूरी मुंबई जो है पानी में डूब गई थी, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ था, फ्लूडेड एंड केवल पानी ही दिख रहा था, मुंबई कहीं पता नहीं लग रही थी। बहुत बड़ा नुकसान भी इसमें हुआ था, मुंबई का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। Why shouldn't we wait at the foothill while it is raining heavily? तेज बारिश के समय हमें जो है ऊंची पहाड़ियों पर क्यों नहीं रुकना चाहिए? Answer: during cloud bursting, severe rainfall or floods, there is possibility of landslide. The houses located at hills may come down due to such changes. The excessive rainfall can create strong water currents such as flow down from the heights to the lower area. Therefore, to save our lives, we should not wait at the foothills. इस तरह से जो है लैंडस्लाइड हो सकता है और जो है हमें अपनी जान खतरे में हो सकता है। अपनी जान को बचाने के लिए हमें ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा तेज बारिश हो तो ऊंचे स्थानों पहाड़ियों पर नहीं रुकना चाहिए। फ्लूड्स, व्हाट इज फ्लूड्स? बाढ़ किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय फ्लूड्स? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लूड्स? इसको याद करें, इसके पहले भी थोड़ी जानकारी आपको हुई थी। तो व्हाट इज मीन बाय फ्लूड? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लूड? फ्लूड किसे कहते हैं? फ्लूड का इफेक्ट क्या होता है? आंसर: ड्यूरिंग फ्लूड्स, water is accumulated at one place in a very large amount. This is caused due to heavy rainfall. The river may also overflow and spread its water along the banks. यानी जो है बहुत ज्यादा पानी जब एक जगह पे जमा हो जाता है, यानी इसका भी कारण हैवी रेन्स होता है। हैवी रेनफॉल जब होता है तो रिवर्स में का पानी जो होता है ओवरफ्लो होने लगता है और चारों तरफ किनारे किनारे फैल जाता है, तो इसे ही हम फ्लूड्स कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फ्लूड्स: फर्स्ट वन, ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. द एक्सेसिव रेन वाटर कैन नॉट बी ड्रेन ड्यू टू चोकिंग ऑफ ड्रेन पाइप्स. तो बहुत बड़ा नुकसान लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का होता है, और ज़्यादा जो पानी हो जाता है वो चोकअप हो जाता है ड्रेन्स वगैरह, इसलिए वो निकलता नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई गेट सॉल्टेड. ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, सड़क रेलवे लाइन सब नष्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बंद हो जाती है। इस तरह से फ्लूड होता है तो soil erosion take place resulting into damage of farms and crops. Cattle lose their life. तो भूक्षरण भी होता है, जमीन का नुकसान होता है, और फार्म्स यानी खेत और फसल दोनों नष्ट हो जाते हैं। कैटल्स की जानें चली जाती हैं, पालतू जानवर भी मारे जाते हैं बहुत सारे। द epidemics spread and harm the health of the people after the flood water recedes. जो है जब बाढ़ का पानी कम हो जाता है, चारों तरफ कीचड़ जमा हो जाता है, गंदगी फैल जाती है, जिसके कारण महामारी आ जाती है, बीमारी आ जाती है और लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फ्लूड के बाद जो है इस तरह से स्थिति बनती है। We have already learned about floods and the effects of floods. तो हम लोगों ने देखा फ्लूड्स क्यों आता है, फ्लूड्स का इफेक्ट क्या होता है। Collects information about the floods and have occurred at various places in Maharashtra in the last few years. कुछ ईयर्स पहले महाराष्ट्र में कहाँ इस तरह से घटनाएं घटित हुई थी, इस तरह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। See there is a picture showing the floods. Here is some cars are जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि पानी में आपको तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से फ्लूड्स का असर होता है। प्रोटेक्टिंग मेजर इन व्यू ऑफ फ्लूड्स. फ्लूड से हम बच कैसे सकते हैं? नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्मॉल डैम्स इन माउंटेनियस रीजन्स. छोटे छोटे हम डैम्स बना करके पहाड़ियों पर पानी को रोक दें। कंस्ट्रक्शन ऑफ परसोलेशन टैंक्स. कुछ जो है
जो पानी को जमा करते हैं, ऐसे टैंक्स तालाब बना दें। मेकिंग रिवर्स बेड्स फ्लैट, जो है नदी के जो बेड्स हैं उनको चौड़ा कर दें। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, नए जंगल लगाने से। कनेक्टिंग रिवर्स, छोटी नदी बड़ी नदी से कनेक्ट कर देने से। इस तरह से कुछ काम करने से जो है बाढ़ की स्थिति कम की जा सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established the National Flood Commission in 1976. The commission has made special efforts toward the control of floods. A plan regarding floods control is kept ready from national level to village level. Large scale damage of property and loss of life can be avoided because of this plan. तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक जो है कमीशन बनाया है, नेशनल फूड कमीशन बनाया है 1976 में, जो इसके लिए काम करता है। और ऐसी कोई स्थिति आती है तो नेशनल लेवल से लेकर के विलेज लेवल तक प्लान करके रखते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आई है होती है तो ये जो है कमीशन काम करता है और लोगों की मदद करता है। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पार्ट समझ में आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।